السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو کچھ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ چل رہا تھا فعل مضارع میں تغیرات، وہ تبدیلی کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو فعل مضارع اپنی اصل شکل سے ہٹ کر دو اور شکل اختیار کرتا ہے، جو فعل مضارع خفیف اور یا اخف ہوتا تھا۔ خفیف کو گرامر والے لوگ منصوب بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ کیوں اس کو منصوب کہتے ہیں اور اس کو پہچاننے کے لیے آسان طریقہ ہے۔ اور اخف کو مجزوم کہتے ہیں، وہ کیوں مجزوم کہتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دو اصل وجہ تھی، وہ شکل کیا تھی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تبدیل ہونے کے بعد کیا بدلا تھا، اور دوسرا یہ دیکھا تھا ہم نے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ریزنز کیا تھی۔ تو ہم نے جو ریزنز میں دیکھا تھا وہ ریزن یہ دیکھا تھا کہ کچھ حروف آتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں جس کی وجہ سے فعل مضارع اپنی شکل سے ہٹ کر، اپنی اصل شکل سے ہٹ کر خفیف یا اخف ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ حروف کیا کیا تھے، ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں وہ انشاءاللہ پچھلا کلاسز میں ریپیٹ ہو گیا ہوگا تو ذہن میں ہوگا، امید کرتا ہوں۔ ہمارا جو چل رہا تھا خفیف ہم نے مکمل کر لیا، تو خفیف میں جو چینجز آیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اخف ہمارا جو چل رہا تھا، اور اخف میں ہم نے دو حروف پڑھے تھے جس کی وجہ سے فعل مضارع اصل شکل سے ہٹ کر اخف ہو جاتے یعنی مجزوم ہوتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا تھا وہ شکل جو تبدیل ہوتی تھی، جیسے فعل مضارع کے گردان میں نے یہاں پہ 3 حصوں میں بانٹا تھا، یہ دوسرے حصے کا ہی وہ جگہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے یہاں پہ لکھنا میں، تو 3 حصے میں ہم نے تبدیل کیا تھا فعل مضارع کے وہ صیغے جس کے آخر میں پیش آ رہا تھا۔ تو جب کبھی فعل مضارع اصل شکل سے ہٹ کر اخف ہو جائے گا تو جس حروف کے یعنی جس صیغے کے آخری حرف پر پیش آتا تھا وہ پیش سے بدل کر کیا ہو جاتا تھا، سکون ہو جاتا تھا، جزم لگ جاتا تھا اس پہ۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ صیغے جس کے آخری میں آنی، اونا اور اینا کی آواز آ رہی تھی تو ان کے سارے نون ڈراپ ہو گیا تھا، اور جو اونا والا صیغہ تھا اس کے نون ڈراپ ہونے کے بعد اس کے آخر میں ایک الف ایکسٹرا لکھ دیا جاتا ہے لکھنے کے طور پر، اور یہاں بھی اس کا نون ڈراپ ہو گیا تھا، اور چونکہ یا آخر میں جب آتا ہے تو ایسے نہیں لکھا جاتا، وہ ایسے ہوتا تھا، تذہبی رہ گیا تھا۔ اور یہ جمع مؤنث کا جو صیغہ استعمال ہوا تھا یذهبنا تذهبنا، تو یہ جمع مؤنث کا صیغہ ویسے کا ویسا رہتا ہے، چاہے وہ خفیف کی حالت میں ہو چاہے وہ اخف کی حالت میں ہو۔ کسی کو یاد ہے ہم نے وہ جو حروف پڑھا تھا سب سے پہلے جس کو فعل مضارع میں فعل مضارع کو اخف کرتا تھا، وہ پہلا حرف کون سا تھا؟ اخف لم تھا، دوسرا تھا ہمارا یہ تھا، ہاں خفیف اور اخف الگ الگ ہے نا، خفیف مجزوم تھا، سوری خفیف منصوب تھا جو زبر کے ساتھ ہو رہا تھا بدلاؤ، جو پیش زبر کے ساتھ بدل رہا تھا، اور اخف جو تھا، اخف دوسری شکل ہے جو جس کو مجزوم کہتے ہیں، جو جزم کے ساتھ میں بدل رہا تھا۔ پہلا حرف تھا لم، دوسرا تھا لمبا۔ لم کیا کرتا تھا، لم کیا معنوی تبدیلی کرتا تھا، کس کو یاد ہے؟ زوردار نفی، ماضی کے ساتھ جملے کو خاص کر دیتا تھا، جیسے لم یذهب زیدن، زید گیا ہی نہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں زید ہرگز نہیں گیا، یعنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا تھا۔ لما کیا کرتا تھا، ابھی تک نہیں کا، ناٹ یٹ کا مفہوم پیدا کرتا تھا، اور جب کبھی یہ کسی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو تو فعل مضارع اخف ہو جاتا تھا، یعنی اگر ہم اس کو استعمال کرتے تو لما یذهب زیدن، زید ابھی تک نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم آتے ہیں تیسرے پہ، تیسرا جو ہمارا تھا آج جو ہم پڑھیں گے تیسرا ہمارا وہ ان کے بارے میں کسی کو کچھ خبر ہے، یہ ان کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ قرآن میں اگر میں معنی میں استعمال ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ہاں اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں، اور اگر جیسے کہ اردو میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر ہمیشہ استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے، مثال اگر میں کہوں کہ اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، یعنی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے اردو کے اندر میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے عربی کے اگر بھی
अरबी में भी इन कई तरह के होते हैं, लेकिन इस इन को चूंकि ये शर्त के लिए इस्तेमाल होता है तो इसको इन शर्तिया भी कहा जाता है, इन शर्तिया भी कहा जाता है। और जैसे ही इन शर्तिया का इस्तेमाल आएगा तो हमारे जहन में तुरंत दौड़ जाना चाहिए जुमला शर्तिया पे। अब ये जुमला शर्तिया क्या है, यहाँ पे आपको नया टेंशन आ गया। क्या आप सोचे थे, आपको मैंने बताया था उस दिन की जुमले के दो ही किस्में होते हैं, या तो फिर हाँ जिसमें शर्त हो वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जुमला दो ही तरह के ही होते हैं, या तो जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया इस्तेमाल होगा, या तो जुमला फेलिया होगा। असल में ये जुमला शर्तियां जो है ना, असल में ये दो जुमलों का मुरक्कब होगा। चूंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है फेल मुदारे चल रहा है और फेल चल रहा है हमारा, लिहाजा फेल मुदारे में फेल मुदारे चल रहा है, तो शर्त यानी जुमला शर्तिया के अंदर वो जो दो मुरक्कब होगा ना, वो दो मुरक्कब असल में फेल मुदारे ही होगा, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। एक शर्त रखता हूं मैं, उर्दू में लिखता हूं पहले, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि अगर ना मनफी वाला बाद में बनाते, पहले नॉर्मल बनाते, अगर तू जाएगा, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी कर लेते हैं। ये था हमारा जुमला उर्दू के अंदर, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। जुमले के शुरू वाले हिस्से में जहां अगर तू जाएगा, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जुमले के वो हिस्सा जो शुरू में आता है, इस जुमले को, इस हिस्से को कहते हैं अरबी के अंदर शर्त। ये जुमला हो गया शर्त, ये क्या हो गया, ये शर्त हो गया। और शर्त के बाद जो उसने शर्त रखा वो हो गया जवाब शर्त, या इसको जजा भी कहा जाता है, इसको अरबी में जजा भी कहा जाता है। इसको गौर करके अच्छे से समझ लेने की कोशिश करें। इन क्या करता है, फेल मुदारे को क्या कर देता है, अखफ कर देता है। अरबी इन उर्दू के अगर के माने में आता है, यानी इंग्लिश में इफ के माने में। इस इन को बाकी इन से फर्क करने के लिए इस इन का नाम रखा गया इन शर्तिया। इन शर्तिया जब कभी इस्तेमाल होगा तो हमारे जहन में तुरंत एक मुरक्कब का नाम आएगा जिसको कहते हैं जुमला शर्तिया। ठीक है, जुमला शर्तिया के दो पार्ट होते हैं, एक वो हिस्सा जिसको शर्त कहा जाता है। मिसाल और उर्दू में जुमला ले लेते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं मारूंगा, तो अगर तू नहीं जाएगा तो ये शर्त है। इस शर्त के जवाब में उसने कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मारूंगा, और इंशाल्लाह इसका तर्जुमा भी आप करेंगे, बड़े मापी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जब बोली है तो वो तर्जुमा भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर तू नहीं जाएगा या तू अगर जाएगा नहीं, तो फिर जो भी कुछ भी ले सकते हैं हम। तो पहला हिस्सा कहलाएगा शर्त, जो वो शर्त के जवाब में कहेगा उसको कहते हैं जवाब शर्त, जिसको अरबी में जजा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले जहन में रखिए कि ये जो अगर है ना, इस अगर को हम अगर साइलेंट कर दें, इस अगर को अगर हम साइलेंट कर दें तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाइएगा, तू जाएगा का अरबी क्या होगा, क्या हो जाएगा अरबी, जहाबा, जहाबा या जहाबू होगा। तू जाएगा तो तजहब मुजक्कर है ना, तजहबू, तजहबू था ना, नॉर्मल नॉर्मल फेल मुजारे बना रहे हैं अपना। गर्दान, गर्दान करें, यजहबू का गर्दान करें, यजहबू का गर्दान करें ना, क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह, प्रैक्टिस हो जाएगा। यजहबू, यजहबानी, यजहबूना, तजहबू, तजहबानी, यजहबना, तजहबू, आ रहा ना, आ रहा ना मुखातिब के फसीगे में, तजहबूना, तजहबानी, तजहबूना, तजहबीना, सॉरी तजहबानी, तजहबूना, फिर नीचे में आएगा ना वाहिद मुअन्नस के सीगे में मुखातिब में तजहबीना, वो तो मुअन्नस के लिए आएगा, तो ये मुजक्कर में आ रहा ना तजहबू। हाँ फेल मादी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आप तजहब, वो आप सोच रहे कि जहाबत, जहाबत आप सोच रहे, ता लगा रहे शायद गालिबन। अच्छा ठीक है, तो अगर तू जाएगा, तो अगर को हमने पहले साइलेंट किया, तू जाएगा का हमने फेल मुदारे नॉर्मल लिखा, तजहबू तू जाएगा, तो इसको भी साइलेंट अभी कर लेते हैं हम, मैं भी जाऊंगा भी को भी निकाल देते हैं।
ठीक है, मैं जाऊंगा क्या हो जाएगा अभी, अजहबू, मैं जाऊंगा अजहबू। ये था हमारे पास। देखिए अब देखिए ना, ये है ना, दो मुरक्कबी है ना, तजहबू और अजहबू, दो फेल मुजारे हैं ना जी, दो फेल जुमला फेलिया है ना दी, ये भी जुमला फेलिया है, चूंकि इसके अंदर भी फेल है और मफूल है, इसके अंदर भी फेल है और मफूल है, जमीर के सीगे में है, ठीक है ना, फाइल यहां जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये दो मुरक्कबी है जो जुमला फेलिया ही है। इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे जब हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि फेल मुजारे के साथ साथ फेल माजी भी आ रहा है, ठीक है ना, जुमला इसमें भी आ रहा है, ये जुमला शर्तिया के अंदर जुमला इसमें भी आ रहा है, और जुमला फेलिया के अंदर जुमला माजी भी आ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आ सकता है इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। लेकिन अभी चूंकि हमारा टॉपिक है फेल मुदारे, तो फेल मुदारे को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो तजहबू अजहबू, अब हम लगाते हैं इन शर्तिया, इन शर्तिया हमने लगाया, तो चेंजेस क्या किया इसने, क्या किया, फेल मुदारे को अकफ कर दिया। तो जुमला शर्तिया के अंदर जब शर्त फेल मुदारे है और उसके शुरू में इन लगा रहता है, जाहिर सी बात है, तो जब फेल मुदारे शर्त वाले हिस्से में अखफ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जवाब शर्त का फेल मुजारे भी अखफ हो जाएगा। तो हमारे पास जुमला आएगा इन तजहब अजहब, अगर तू जाएगा मैं भी जाऊंगा, ठीक है। भी जो है ना, ये उर्दू मुहावरे में इस्तेमाल होता है, अरबी में जरूरत नहीं पड़ी इसको, ठीक है ना। तो नॉर्मली देखिए वो जो तुझे बताया जा रहा, तो भी ऑटोमेटिकली उर्दू मुहावरे के अंदर हम दाखिल कर देंगे। अब अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर अब देखें तो देखिए कितने जुमले आ रहे हैं, एक अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, तो अरबी में देखिए क्या हो रहा है, इन तजहब अजहब, एकदम सिंपल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इन तजहब अजहब, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, नीचे वाला अच्छे से समझ लिया आप लोग। कोई सवाल यहां तक इन शर्तिया को समझने में? एकदम इजी है ना, चले माशाल्लाह। मैं जुमला देता हूं, आप जुमला में ट्रांसलेट करें, सिंपल आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने तरीका यहां बताया उस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि वो जो कायदा है ना, वो कायदा आपके जहन में बैठ जाए, जो रूल्स है ना, रूल जहन में बैठ जाए आपका। मैं जुमला देता हूं कि अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, जुमला बना, कौन बनाएगा? जलसा फेल मादी के लिए जलसा यजलिसु होता है, अगर तू बैठेगा, अगर तू बैठेगा, पहले इन तजलिस चले, इन लग गया शुरू में, नहीं नहीं तजलिस ही रहेगा, क्या क्या, इसीलिए बोला मैंने, ये यही गड़बड़ करेंगे ना, यही प्रॉब्लम करते हैं आप लोग। मैंने बोला ना, पहले रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, रूल्स को अप्लाई करें, पहले इसको भूल जाए, अभी क्या ये भूल जाए, पहले तजलिसु तू बैठता है या बैठेगा, अजलिसु मैं बैठता हूं या बैठूंगा। अब इन शर्तियां लगाने के बाद अब इसको चेंज करें, अब इसको खफीफ करें, कि खफीफ से अखफ करें, इन तजलिस अजलिस, चले, तो ये हो गया सिंपल सा। अब थोड़ा टफ देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आपको बोला कि अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा, करे इसका तर्जुमा, पहले उसको उर्दू में, अच्छा चले ठीक है, पहले छोड़ दे जो नहीं आता अभी, पहले पहले हम, हाँ पहले पहले शुरू में आते, फेल लेकर आते, इन विन सभी छोड़ देते, पहले तू ठंडा पानी पिएगा क्या होगा, तू पानी पिएगा, तू पिएगा, पानी भी छोड़ दिया, तू पिएगा, तशरीबू होगा, हाँ हाँ, शरीबा था ना, रा पे जेर है ना, एन कलीमा पे जेर है, तो क्या होता है 99% जबर आता है, तशरबू तू पिएगा, अब उसका मफूल आ रहा, क्या आ रहा है, पानी, अल, पानी भूल जाइए अभी, अल मा, अब इसका सिफत लेकर आते हैं, सिफत क्या है, ठंडा, तो उसके लिए क्या मैंने बताया था, ठंडा का अलबारीदा, अलबारीदा, तो हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, तशरिबू अल मा अल बारिदा,
तू पिएगा पानी ठंडा, यानी ठंडा पानी अगर तू पीता है। अच्छा यहाँ जबर क्यों आया ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, यहाँ पेज दिख रहे हैं, यहाँ जबर क्यों? ये मौसूफ सिफत तो ठीक है, समझ में आ रहा है, मौसूफ सिफत समझ, ये जबर क्यों आ रहा है यहाँ पे? मफूल या फाइल खबर, एराब को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों फिर? मफूल है ये, अल माल बारदा ये मफूल है, और मफूल हमारा मुरक्कब तौसीफी बनकर आ रहा ना, ये तो मुरक्कब तौसीफी है ना जी। तशरीबू, तशरीबू में मफूल है, फाइल है कि नहीं? फेल है। तशरीबू के अंदर, तशरबू के अंदर, तशरबू के अंदर मफूल है ना जी, तू जमीर की सूरत में, तो मफूल तो आ गया ना। अब जो पिया जा रहा है यानी वो मफूल, ये मफूल है, ये जो पिया जा रहा है वो मफूल है, फाइल तो इसमें मौजूद है, फाइल जो इसमें मौजूद है, मफूल क्या है? वो पानी पीना, पानी है ना जी, तो पानी मफूल चुके हैं, मफूल तो मंसूब होता है ना, तो इसीलिए ना जबर के साथ आ रहा है, ये तो बेसिक चीज है ना, इसको ध्यान में रखेगा। तशरबु अल मा अल बारिदा, बीमार होने के लिए अरबी में मीम और दवाद इस्तेमाल होता है, और माजी में मरीदा इस्तेमाल होता है, मरीदा, तो उसको मुदारे जब बनाएंगे तो यमरदू हो जाएगा, तो यमरदू वो बीमार होता है या होगा, तू बीमार हो जाएगा तो क्या होगा? तमरिदू, तमरदू। हाँ नॉर्मली एक्चुअली उर्दू क्या, उर्दू तो अरबी का ही तो निचोरी है। अब लगाते हैं इसके शुरू में इन शर्तियां, मैंने इन शर्तियां लगा दिया, इन शर्तियां क्या किया इसने, फेल मुदारे को खफीफ से ओरिजिनल शक्ल से अखफ कर दिया, तो हो गया इन तशरिब। अच्छा अब यहाँ पे ये देख ले, यहाँ देख ले, ये भी साकिन है और यहाँ साकिन है, मैंने क्या यूनिवर्सल रूल दिया था कि जब दो साकिन को मिलाया जाता है तो वापस जेर देके मिलाएंगे, तो इन तशरबिल मा अल बारदा, और चूंकि ये हमारा जवाब शर्त है, ये तो ऑटोमेटिकली अखफ हो जाएगा, तमरदू अल बारिदा, अल बारिदा रा पे जेर है, ठीक है। अगर दो पीछे भी जजम आ जाए और उसके दरमियान में ये जो है ना, ये अलिफे मौसूल है, इसको क्या बोलते हैं, उसको वो लिखा सूरत में रह जाएगा, इसको पढ़ा नहीं जाता है, जब पीछे से मिलाकर पढ़ा जाता है तो जब ये पीछे से मिला करके पढ़ेंगे तो पीछे भी जज्म है और यहाँ भी जज्म है, तो लिहाजा जब मिलाना पड़ता है ना, और ऐसी हालत में जहाँ पे मिलाना मुमकिन नहीं होता, तो वो अरब क्या करते हैं, पीछे से जेर दे करके उसको, ठीक है ना, उसको जेर देके हमजतुल वसल कहते हैं इसको, हमजतुल वसल, ठीक है ना, तो इसको मिलाने के लिए वो क्या करते हैं, पीछे से जेर देकर पढ़ने शुरू कर देते, तो इन तशरबिल मा अल बारिदा तमरदू, तू बीमार हो जाएगा, ठीक है ना, तो मजेदार चीज है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, जुमला क्या बोला था आपने, नफी वाला छोड़ दे, सिंपल सा बना है, अगर तू जाएगा तो मैं मारूंगी या मैं मारूंगा, करे इसका जुमला करे, तू जाएगा अगर छोड़ दे, पहले तू जाएगा बनाइए, तू जाएगा बनाइए, जहाबा से यजहबू है, तजहबू यानी तजहबू, तू जाएगा, हाँ, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी, जरबा यजरिबू, जरबा यजरिबू, यजरिबू, मैं मारूंगी, क्या होगा, अजरबू अजरिबू, अजरबू या अजरिबू, जरबा यजरिबू, अजरिबू, अजरिबू, ये है ना जी, तू जाएगा मैं मारूंगी, तू जाएगा मैं मारूंगी या मैं मारूंगा, मोहन्नस कहेगा तो अजरिबू होगा, वो भी सही है, अगर मुजक्कर कहता तो अजरिबू, तो तजहबू अजरिबू, तू जाएगा मैं मारूंगी, इन शर्तियां लगाएं जी, इन तजहबू अगर तू जाएगा, अजरिबू तो अजरिब हो गया। अच्छा इसके साथ अगर मफूल लगाना चाहे तो इसको, इसका इसका मफूल अगर लगाना चाहे तो अजरिब, कि तुझे मारूंगी, तो यहाँ पे मफूल भी लग जाएगा अजरिब का, इन तजहबू अगर तू जाएगा, अजरिब का मैं तुझे मारूंगी,
आ गया ना, तुझे भी आ गया ना, मफूल भी आ गया हमारा, फाइल इसके अंदर मौजूद है, अजरिब में जमीर खुद का सीगा है यानी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, और का मफूल आ गया, सिंपल है। चले इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक देता हूं, जुमला बनाया, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, अगर तू मुझे मारेगा। चले पहले पहले शुरू का बनाए, नहीं नहीं, तू मुझे मारेगा, तू मारेगा पहले बना, पहले फाइल और फेल और फाइल बनाए, सॉरी, तदरीबू मुझे मारेगा, तू मारेगा मुझे, मुझे के लिए क्या होगा, हाँ हाँ, मंसूब की जमायर बोले, हालत मंसूब वाली जमायर बोले, हु हुमा हुम, सब भूल गए, हु हुमा हुम, ही हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। और मुझे मैंने बताया था कि जब भी फेल के साथ अगर मफूल शुरू को मफूल के तौर पर आए, या तो हमेशा नून सा बीच में आता है, तो नी की सूरत में लिखा आएगा, तो तजरीबू नी, चूंकि ये या साकिन की आदत क्या है, या साकिन अपने से पहले को जेर मानता है, लेकिन चूंकि ये मफाइल का जो फेल है ना, फेल का पेश मानता नहीं अपने आप को जेर, तो उसके लिए बीच में क्या लगता, नून साहब आ जाए, जिसको हमने बताया था नून विकाया, तो नून जेर के साथ इसको हमेशा लिखा जाएगा, जब भी याद रखेगा जब फेल के साथ वाहिद मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल होगा तो नी के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो हो गया ना तजरीबूनी, तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारूंगी, क्या हो जाएगा, सब हमको लिखना पड़ रहा है, तजरीबूनी तू मुझे मारेगा, अजरीबू का मैं तुझे मारूंगी या मैं तुझे मारूंगा, अब इन शर्तियां लगा, इन तजरिबनी अजरिब का, एकदम सिंपल है ना जी, इन तजरिबनी अजरिब का, बता किसको किसको नहीं समझ में आया, हाँ, कोई कंफ्यूजन, पक्का, अब एक चीज दे रहा है, अब आप ही लोगों को बनाना है इंशाल्लाह, ठीक है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, बना इसका, अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे, तुम लोग अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे, बना इसका, नसरा यनसुरु, नसरा यनसरु, यनसुरु, नसरा यनसुरु, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे, सिंपल, देखिए जहन को खाली करके पहले यनसुरु का सिगा पढ़ना शुरू करें, जहन में बैठा है यनसुरु यनसुरानी यनसुरुना, तंसुरु तंसुरानी यनसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, यानी तुम लोग मदद करोगे, तो क्या होगा तंसुरूना, ये अभी भूल जाइए, अभी नहीं डाल रहे इसको, इसको गैप रखिए, ठीक है, तंसुरू किसकी, अल्लाह की, तंसुरून अल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, वो मदद करेगा तुम्हारी, वो मदद करेगा तुम्हारी, वो मदद करेगा तुम्हारी, ट्रांसलेट करें इसको, ट्रांसलेट करें इसको जल्दी फटाफट, वो मदद करेगा, वो मैंने बताया था ना, वो या से बताता, यंसुरू, यंसुरू तुम्हारी, वो मदद करेगा तुम्हारी, मफूल है तुम्हारी, तुम लोगों की, प्रैक्टिस नहीं हो रहा लग रहा है, जमायर भूलते वो जल्दी इंशाल्लाह, मुझे समझ, हाँ अब मैं ला रहा हूँ ना, अब उसको नून लगा रहा, अब जब इसको मैंने खोल दिया, इन लगाया, जब मैंने इन लगाया तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इसने यहाँ के ये सीगे को नून हटा दिया और अलिफ लिखा हुआ रह गया, और जैसे कि इसका जवाब शर्त में यन शुरू है, तो ये
यंसुर हो गया। तो ये कुरान मजीद की बहुत आयत, बहुत बेहतरीन आयत है। जैसे कि आपको पता है कि इन तंसुरुल्लाह, कि अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, यंसुरकुम, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तो आप देखिए इस काबिल हो गया कि अल्लाह के फजल से आपने कुरान मजीद की आयत अपने खुद ब खुद लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। बस उर्दू तर्जुमा आपके जहन में आना चाहिए, उसको अरबी खुद ब खुद बना रहे। जी बोले। जमा का सीगा था ना, तजहबू तजहबानी, तजहबूना यजहबूना, तजहबू तजहबू यजहबूना, यजहबू और तजहबूना जो था, तो ऊना की क्या थी, नून हट गया और लास्ट में अलिफ लिखा हुआ रह गया था, तो हुआ ना, नून हट के अलिफ लिखा रह गया। तो इन तंसुरुल्लाह, कि तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। सिंपल है ना जी। वहां पे जो हमने पढ़ा था वो कुरान मजीद की, लयंसुरन्नल्लाह, अल्लाह जरूर बिल जरूर मदद करेगा, मई, जो, यंसुरूहु, जो उसकी मदद करेगा। तो वहां हमने ताकीद देखा था, फेल मुदारे के अंदर हमने ताकीद देखा था, तो वही जुमला है, लेकिन यहाँ थोड़ा शर्त के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे, और अल्लाह की मदद जाहिर सी बात है, मैंने बताया था अल्लाह के दीन की मदद, कि जब तुम अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू कर, अल्लाह के दीन की तौहीद बयान करना शुरू करेगा, अल्लाह की तौहीद बयान करना शुरू करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बयान करना शुरू करेंगे, तो जो तुम पर परेशानी आएगी, जो जाहिर सी बात है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आई थी, तो ऐसी सूरत में तुम टेंशन ना लेना, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कौम में बहुत प्यारी मिसाल है जो मेरे जहन में फिल वक्त आई, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मेरे भाई, यानी चूंकि मूसा एक बहुत ताकतवर एक बादशाह है, और जाहिरन बात है उसका एक बंदा भी मेरे से कत्ल हो गया, तो मुझे वहां से भागना पड़ा था, तो तू मेरे भाई को मेरे साथ एक ताकत के लिए तौर पे मुझे भी एक उसको भी नबूवत दे दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया था, और साथ ही अल्लाह ने कहा था कि तुम जाओ मूसा के पास, सॉरी फिरौन के पास, कि जो फिरौन है ना, वो फिरौन बहुत उछल रहा है और हद से बढ़ गया हुआ है, तो अल्लाह ने कहा कि तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यानी कि जब अल्लाह की दीन की दावत के तौर पे जाएंगे, तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अल्लाह आपके साथ है, ठीक है ना। बस इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि आप अब जब कभी हक बयान करें, अगरचे आपको कितना भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश, जामे तिर्मिजी की हदीस है, गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में आता है कि वो रास्ते सफर में थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एक बहुत प्यारी नसीहत की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे, मैं तुझे एक बहुत प्यारी नसीहत कर रहा हूँ, कि याद रखना कि जब कभी तू सवाल करना, जब कभी तू मदद मांगना, तो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ना मांगना, ठीक है। और जब कभी तू कुछ मांगना भी, दुआ करना, तो भी अल्लाह से करना। और ये जहन में रख कि जब कभी दुनिया के लोग मिल करके भी तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो तुझे उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। और अगर तुझे दुनिया के लोग मिल करके भी भलाई अता करना चाहे, तो उससे ज्यादा एक बराबर भी भलाई अता नहीं कर सकते जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है, माशाल्लाह। तो ये था हमारा इन शर्तिया, इन शर्तिया था हमारा। तो ये तीसरा हर्फ था जिसको हमने देखा कि क्या करता है, ये फेल मुजारे को अखफ कर देता है। अब आते हैं, अच्छा यहाँ कोई सवाल नहीं, पक्का कंफर्म सबके जहन में बैठ गया। ये अखफ का ही तरीका था। अखफ का तरीका उसलिए उसको जजम इसलिए मजजूम कहा जाता है क्योंकि वो पहले सीगे में जो जिसके आखिरी में पेश आ रहा था ना, वो सीगा पेश से हट करके जजम में तब्दील हो जा रहा था, लेकिन जिसके आनी और ऊना की साउंड आ रही थी और ईना की साउंड आ रही थी, उसके नून ड्रॉप हो रहे थे। और जो ऊना वाले हैं ना, ऊना वाले के नून ड्रॉप होने के साथ जमा सालिम, जमा मुजक्कर के सीगे, उनके आखिर में लिखने के तौर पर एक अलिफ को ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं चौथे वाले पे। चौथा वाला हमारा जो है बहुत मशहूर, जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है और रात को नींद में भी तड़पाएगा आपको, और वो है लाम। एक और लाम, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, गर्दन परेशान कर रही थी। अच्छा चले, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता है। कंफ्यूज है इसका मतलब आप सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, आपका माइंड काम कर रहा है। एक और लाम आ गया। क्या क्या लाम हमने पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर ले। एक लाम, सबसे पहला लाम हमने क्या पढ़ा था जो साकिन आता था, क्या नाम था उसका, लाम तारीफ था, माशाल्लाह। दूसरा लाम था वही मुअर्रफ बिल लाम वाला ही, को लाम तारीफ था, मुअर्रफ बिल लाम वाला ही, मुअर्रफ बिल लाम वाला ही लाम तारीफ था। दूसरा था जर वाला था। अच्छा, और एक ताकीद वाला था, और एक और एक बस।
नहीं, हत्ता की जगह तो यूज नहीं हो रहा था, हत्ता के लिए तो अलग से लफ्ज था, हत्ता तो अलग से खुद एक खफीफ करने वाला लफ्ज है वो। नहीं, इजन भी नहीं था, इजन भी नहीं था, इजन भी नहीं कर रहा था, इजन तो था वो, इजन तो तब तो का माना में आ रहा था। गौर करे, जा रहे कोशिश है, करीब में जाए। 4 हरफ पढ़ाए थे ना, 4 उरूफ पढ़ाए थे, 4 उरूफ कौन कौन सा था खफीफ करने वाला? क्या क्या था? एक लन, लन, अन, कई। कई क्या माना करता था? कई से कुछ याद है? अभी भी कुछ याद नहीं आया? लामे कई पढ़े थे हम लोग कहीं? ताके के माने कन्फर्म करता था, और हमने बताया था कि लाम जेर के साथ जो आता है, लाम भी इसको लामे कई कहते हैं, क्योंकि ये भी ताके का मफहूम पैदा करता है। तो यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूजन होने वाला है, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने वाला है, तो जहन को खोल के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। यहाँ ना समझ में आए तो वो गोल गोल घूरते रहिएगा, चूंकि वो लामे कई भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा मैं बता रहा आपको। ये जो लाम है ना, ये लाम फेल मुदारी को अखफ करने के काम में आता है, और इस लाम को अरबी में लामे अम्र कहते हैं। अम्र का माना क्या होता है? हुक्म करना या हुक्म देना, तो इसको हम लामे अम्र कहते हैं, ठीक है ना। एक होता फेले अम्र, वो हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो सीगे थे ना, वो 3 तरह के सीगे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अरबी में उल्टा होता है, थर्ड पर्सन पहले आता है, सेकंड पर्सन बाद में, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो ये लामे अम्र जो हुक्म करने के माने में आता है, ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जब कभी अरबी में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को, हुआ को या अना को, हुआ को या अना को, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, या अना नहनू को, इन लोगों को अगर आपको हुक्म करना है या मशवरा देना है, तो ऐसी सूरत में इस लामे अम्र का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन में है ना, सेकंड पर्सन, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, इसके लिए अलग से फेल इस्तेमाल होता है। ये एक अलग से हम टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम इसके बाद ही पढ़ेंगे हम। लेकिन थर्ड पर्सन, क्या लिख दे रहा हूं मैं, ये थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन के लिए, ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को हुक्म करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, मशवरा देने के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल में देता हूं, जैसे उसे चला जाना चाहिए। अब उससे मैं, जाहिर सी बात है गैब का सीखा है, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं उसको मैं कह रहा हूं उससे चला जाना चाहिए, मतलब वो चला जाए, यही मैं चाह रहा हूं ना। मैं मशवरा दे रहा हूं या फिर हुक्म कर रहा हूं उससे चला जाना चाहिए। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए कुरान, तो मैं अपने आप को हुक्म कर रहा हूं या मशवरा दे रहा हूं अपने आप को। तो इस ऐसे लफ्जों के लिए, ऐसे हरूफ के लिए, मतलब ऐसे जुमलों के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लामे अम्र इस्तेमाल होता है। कैसे? एक मिसाल लेते हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कहता हूं जैद को चले जाना चाहिए, तो पहले जैद चला जाए के माने में, जैद जाता है या जाएंगे, तो हो जाएगा यज़हबु ज़ैदुन, यज़हबु ज़ैदुन, कि यह जैद जाता है या जाएगा। इसको एक्स्ट्रा बना लेते हैं, अच्छा छोड़े, शॉर्ट ही ले लेते हैं, इलल मस्जिदी। अब मैंने इसमें लियज़हबु नहीं होगा, फिर लियज़हबु हो जाएगा, नहीं बल्कि लियज़हब हो जाएगा, लियज़हब ज़ैदुन, लियज़हब ज़ैदुन। अब देखें यहाँ पे कितनी बड़ी कंफ्यूजन को हम दूर करना चाह रहे हैं आपको। उसकी वजह यह है कि ये लाम लामे कई के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब अगर ये मैं साकिन हटाकर इसको अगर जबर कर दूं, माना क्या हो जाएगा इसका? ताकि जैद चला जाए, ताकि ये जैद ताकि जैद जाता है या जाएगा, ताकि का मफहूम पैदा करेगा ना, ताकि जैद जाता है या जाएगा। जब जबर लगेगा तो ये खफीफ हो जा रहा है, तो हमें पहचान करना कि ये अब ये लामे कई हो गया, अब ये लामे अमर नहीं रहा, अब ये लामे कई का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम इसको बगल जबर से बदलकर इसको हमने साकिन कर दिया, तो अब ये लामे अमर हो गया। लियज़हब ज़ैदुन का माना हो जाएगा ताकि, सॉरी, जैद चला जाना चाहिए, जैद को चले जाना चाहिए। ये हमारा मफहूम पैदा हो रहा है कि जैद को चले जाना चाहिए, ठीक है। एक मिसाल और लेते हैं, आप लोग बनाए, इसका तर्जुमा करें। मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, फेल लेकर आए, पहले फेल और फाइल लेकर आए। करा यकराऊ, करा यकराऊ,
यकराऊ से बना, कंफ्यूज ना हो, हम आपसे बनवा रहे हैं। हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए वाली मफहूम रख दे भी, मैं पढ़ता हूँ, ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या पढ़ रही हूँ, इसका मफहूम पैदा करे पहले, फेल फाइल लेकर आए पहले। अकराऊ होगा, ठीक है। अकराउन की अकराऊ होगा। अल कुरान मफूल हो गया, कुरान आ गया ना। अकराउल कुराना, अब इसके शुरू में लगा दे लाम कई, सॉरी लाम अम्र लगा दे, तो ये क्या किया, साकिन कर दिया, और चूंकि मालूम है यहां भी साकिन है, तो इसको क्या करेंगे, जेर देके मिलाएंगे। ली अकराइल कुरान, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। ली अज़हब ज़ैदुन, जैद को चले जाना चाहिए। ली अक़राइल कुराना, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। थर्ड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक है। एक और मिसाल आप लोग ले आपने बनाए, हम सबको, हाँ हाँ, नसब में जब जाएगा ये, ताकि हम कुरान पढ़े, ताकि हम कुरान पढ़े, ताकि हम कुरान पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, वो तो फिर जबर के साथ वहां पे शो हो जाता। तो फिर ये लामे कई का इस्तेमाल हो, ताकि हम कुरान पढ़ते हैं या पढ़ते हैं पढ़ेंगे, ठीक है ना, लामे कई का इस्तेमाल होगा। तो लेकिन चूंकि लामे कई नहीं है, ये लामे अम्र है, तो ली अक़राइल कुराना, तो आप समझ जाएंगे ये सीगे में तो आपको आसान पड़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। मैं आपसे कहता हूं कि हमें इबादत करनी चाहिए, तर्जुमा कर इसका। हम सबको यानी हमें जमा का सेवन ना बुदूना होगा, ठीक है ना, ना बुदूना, हमें इबादत करनी चाहिए ना, चाहिए भूल जाए अभी, चाहे भूल जाइए, हम जो है ना, हम जमा का सीगा है, हमें 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 हमें, चले माशाल्लाह, समझ गए, ठीक है, सही बोले आप, नाबुदू ही होगा, नाबुदूना नहीं होगा। इस तीसरे में कंफ्यूजन से बचे, कंफ्यूजन से बचे। अब ये समझ रहे हैं कि आप सोच रहे जमा का सीगा होगा तो ऊना आएगा, और हम इबादत करेंगे तो फिर नून भी आ जा रहा है, फिर नाबुदूना कैसे हो जाएगा, बल्कि नाबुदू ही होगा। यहाँ जमा का सीगा ऑलरेडी आ रहा है हमारे लिए, ठीक है, तो नाबुदू ही हो जाएगा माशाल्लाह, यानी जहन काम कर रहा है, नाबुदू ही होगा। तो अब इसमें लामे अमर लगा, तो ये हो जाएगा लीना अबुदू, लीना अबुद, लीना बुद। अगर मैं इसके शुरू में आकर लगा दूं किसकी, तो अल्लाह की, तो क्या हो जाएगा, अल्लाह, लीना अबुद अल्लाह। अब जब इसको मिलाएंगे तो क्या करेंगे, लीना अबुदिल्लाही। अब जो हमें समझना है वो डिफरेंस लामे कई और लामे अम्र के अंदर, लामे कई और लामे अम्र के अंदर डिफरेंसेस करना बहुत मुश्किल है, उसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको। ये मैं लिख रहा हूं लामे कई, ठीक है, और ये है लामे अम्र, ठीक है। देखें, मैं कहता हूं उसे चले जाना चाहिए, लियज़हब, उसे चले जाना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि ताकि वो चला जाए, ताकि वो जाता है या जाएगा, यहां फर्क करना आपको आसान पड़ जा रहा है, यहां पे आपको समझ में आ जा रहा है, चूंकि ये मंसूब है और ये खफीफ है, ये मजजूम है चूंकि ये अखफ है, ठीक है ना। यहां फर्क करना आपको समझ में आ जा रहा है कि ठीक है, यहां तो लामे कई इस्तेमाल हो रहा, यहां लामे अमर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम मुसन्ना के सीगे में जाएंगे ना, अगर मैं कहता हूं यानी था, नून ड्रॉप हो गया, और लामे अमर में भी
यहाँ सेम हो जा रहा है, मोनस का सिगा, ये अब जमा का सिगा भी ले लेते हैं एक तो, कि ये आ रहा है ना, ये नाबुदू का ही ले लेते हैं, ली ली याबुदा, याबुदू था, तो ये हो जाएगा अलिफ के सीगे में लिखा हुआ, और ये हो जाएगा, ये भी वैसे ही लिखा हुआ आएगा, सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ समझ में आपको आ जा रहा है, यहाँ आपको जबर और जजम से समझ में आ जा रहा है कि ये लामे अमर नहीं है, लामे कई है, और ये लामे कई नहीं है, लामे अमर है। लेकिन यहाँ आपको टेंशन पड़ जा रहा है कि ली अजहबा और ली अजहबा, ताकि वो दोनों चला जाता है या जाएगा, वो दोनों को चले जाना चाहिए। ली आबुदू, ताकि वो इबादत करते हैं या करेंगे, यानी वो लोग इबादत करते हैं वो करेंगे। ली आबुदू लामे अमर के साथ उन्हें इबादत करना चाहिए। फर्क कैसे करेंगे, सबसे बड़ा टेंशन है। देखें, सबसे पहली बात, हाँ वो देख लेते हैं इंशाल्लाह क्या है। अरबी में अरब वालों ने बोलने में फर्क कर दिया, और ग्रामर वालों ने उसको निकाल लिया। क्या फर्क करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन सबसे पहला काम जो हमारा है वो तो कॉन्टेक्स्ट बता देगा आपको। आप जुमले के ट्रांसलेट करें, जिस जुमले में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट चला जा रहा है, लियज़हबा का दोनों ट्रांसलेशन कर ले, वो दोनों, ताकि वो दोनों चले जाते हैं या जाएंगे, या वो ताकि वो जा रहे हैं, वो दोनों जा रहे हैं, ये ट्रांसलेशन कर ले, या फिर उसका लामे आमर के साथ कर ले, ताकि उन दोनों को चले जाना चाहिए। तो आप देखेंगे दोनों जो फिट हो रहा है, यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ जो मैच कर रहा है, वो तो आपको समझ में आ गया कि वो दोनों में से कौन है। ये सबसे पहला चीज है। दूसरा ये है कि अक्सर अरब क्या करते हैं कि जब इस तरह का सीगा इस्तेमाल करते हैं ना, ये लामे आमर लामे कई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जब कभी उसके शुरू में, यहां थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, उसके शुरू में जब कभी वो, ये भी पुराना मिटाना पड़ेगा, इसके शुरू में जब कभी वो फा ला दे या वाव ला दे, फा तो के माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो के माने में इस्तेमाल होता है, और वाव और के माने में इस्तेमाल होता है, हमने पढ़ा है। जब कभी इन लामे कई के साथ फा या वाव ला दे, और लामे अम्र के साथ भी कभी फा या वाव ला दे, और ये अक्सर लाते भी हैं वो, तो क्या करते हैं वो, हाँ जब वो ये फलियज़हबा अगर वो कहते हैं, तो वो लामे कई को वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो फेले लामे अम्र की तरफ जाते हैं, तो वो लामे अम्र के जेर को सुकून से बदल देते हैं। इसको पहचानने का तरीका आपको अच्छी तरीके से पता, हम फेल चुके, ये लामे कई, लामे अम्र क्या है, ये अखफ करने वाला है, और अखफ के बारे में हमने मजजूम पढ़ा था। तो जज़म से हमको याद समझ में आ जाएगा कि ऐसे लामे अम्र के शुरू में जब कभी फा या वाह आ जाए, तो लामे अम्र को वो साकिन कर देते हैं, लामे अम्र को वो साकिन कर देते हैं, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से, जहन में बैठा करके। जब कभी, हाँ नहीं, दोनों के अंदर, दोनों के अंदर, चाहे वो मुसन्ना हो, चाहे वो आपका जमा का सीगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही दोनों सीगे में हो रहा है ना जी, क्योंकि पहले वाले सीगे में तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा उनको, तो उनमें फर्क करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी फर्क कर दे रहे हैं, लियज़हबा कर दे रहे हैं, लियज़हब कर दे रहे हैं। लेकिन जब लियज़हबा कर रहे हैं ना, तो लियज़हबा, तो इनके अंदर वो फर्क करना है, और जाहिर सी बात है वो उन्होंने फर्क करना था, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो वो क्या करते हैं कि उसके शुरू में वो फा लगा देते हैं या वा लगा देते हैं, ठीक है। तो जब वो फा या वा लगाते हैं, तो लामे कई को वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, असल शक्ल में छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लामे अम्र को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके शुरू वाले फा और वा की वजह से वो लामे अम्र को साकिन कर देते हैं। तो यहां से हम उसको फर्क कर पाएंगे कि ये लामे अम्र है और ये लामे कई है। मिसाल कुरान मजीद से लेते हैं हम। कुरान मजीद की एक बहुत बेहतरीन आयत है, सूरतुल हश्र की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है, देखें यहाँ पे, देखें वहां का इस्तेमाल हुआ,
वल, देखिए यहाँ पे कर दिया ना ये, वल तंजुर, ये यहाँ पे लाल करते तो आपको समझ में आएगा। वल तंजुर, वल तंजुर, अगरचे यहाँ पे अखफ समझ में आ रहा है ये लामे कई है, लेकिन तब भी उन लोगों ने लाम से पहले वाव लगा दिया, तो उसने क्या किया, लामे अमर को साकिन कर दिया। तो देखिए वल तंजुर नफ्सुन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जो ईमान लाए हो, वल और तंजुर नफ्सुन, हर जान को देखना चाहिए, नजरा, नजरा यंजुरू, है ना, तो तंजुर क्या होगा। अच्छा ये तंजुर इसलिए दूसरा सीगा इस्तेमाल हुआ चूंकि ये नफ्सुन मैंने बताया था ये मुअन्नस का सीगा है, और मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चौथा सीगा, तो ये चौथा सीगा इसलिए तंजुर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यंजुर नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो वल तंजुर नफ्सुन, हर जान को देखना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाता है मा कद्दमत, हर नफ्स को देखना चाहिए कि उसने अपने जान के बारे में क्या छोड़ा, देखना चाहिए। तो चाहिए के माने में आ रहा है ना जी, उन्हें देखना चाहिए ना, देखो, हर जान देखो कि अपने जान मैंने अपने आगे के लिए क्या छोड़े वो। अच्छा एक और आयत हम ले लेते हैं, ठीक है, उसको भी समझ में आ रहा है। सूरतुल कुरैश की आयत है, सूरतुल कुरैश में क्या है, देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फर्क, फा मिल गया और जैसे ही लाम आया उसको साकिन कर दिया, फल, ये वाला इसी का इस्तेमाल हो गया। फल या बुदू, ये लिखा का लिखा रह गया, ठीक है, और ये फल या बुदू, तो इसका माना क्या हो जाएगा, इसका माना करें तो फा तो चाहिए उन्हें कि वो इबादत करें किसकी, रब्बा, उस रब की, तो ये हो जाएगा हाजल बैती, फल या अबुदू रब्बा हाजल बैती, तो उन्हें चाहिए कि वो इबादत करे किसकी, इस घर की इबादत, इस घर की रब की इबादत करे, इस घर के रब की इबादत करे। तो ये रब्बा चुके मफूल बनकर आ रहा है, और ये हाजल बैत हमको समझ में आ गया कौन सा मुरक्कब है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक मिल जा रहा। तो एक और आयत मेरे नजर में जो गुजर रहा है, फिल्म मैंने जो निकाला था वो है सूरह तारीख की आयत है, तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वो मैं बता दे रहा हूँ, फल कहाँ गया ये, हाँ, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फल यंजुरूना, यंजुरूना था ना, तो ये सॉरी फल युनजुर था, मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अब मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, वहां भी देखिए फा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और जैसे ही फा इस्तेमाल होता है, हाँ यंजुरिल क्यों आया हुआ है, चूंकि ये साकिन था तो इसको मिलाने के लिए अल इंसाना, चूंकि मिलाने के लिए यहाँ भी साकिन था, तो इसलिए फलयुनजिरिल इंसाना, कि इंसानों को देखना चाहिए, मिम्मा खुलिक, किससे वो पैदा किया गया हुआ है। तो सूरह तारीख की आयत नंबर 5 है ये, तो आपको अब समझ में आने शुरू हो गया होगा कि क्यों ये जबर, क्यों जेर, क्यों पेश आ रहा। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेन टॉपिक था हमारा यही दो था, कि इन ये चार हुरूफ के साथ फेल मुदारे अखफ होता है। क्या क्या था हमारा, लम, लम्मा, इन, जो इन शर्तिया था, और ये हमारे पास नया लाम जेर के साथ जा रहा हमारा लामे अम्र, तो ये हमारा था मेन सीगा। ठीक है, यहां तक क्लियर कर ले तो कि मैं आप थोड़ा आप लोग से प्रैक्टिस करवाता हूं थोड़ा, मैं कुछ जुमले लिखूंगा उसका तर्जुमा आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब तक हमने जो पढ़ा है ना फेल के अंदर, उसके कुछ सीखे में रखता हूं, उसका तर्जुमा आप लोग खुद करेंगे, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही रखूंगा, ज्यादा नहीं। ये मैं रखता हूं, लाज़ाबन्ना इला मक्का, तर्जुमा कौन करेगा इसका, गलती कर दी है, गौर करे, शद कहां से आ रहा, लामे अमर के आखिर में शद कहां से आ गया, नून तो वैसे ही ड्रॉप हो जाना था। हाँ, क्या हो जाएगा, ये नून शकीला के साथ क्या होगा, अजहबन था ना जी, अजहबुन, अजहबन था, पेश था ना ये,
पेश था ना, पेश क्या करता था, जबर के बाद बदल देता था ना इसको, पेश जबर के साथ बदल देता था ना इसको, और उसके बाद आखिर में नून सकीला इस्तेमाल करता था ना। तो क्या होगा, अज़हबन्ना है तो लाम लग गया, लाम और ताकीद पैदा किया, तो क्या जुमला का तर्जुमा, तो ला अज़हबन्ना इला मक्का, तो हो जाएगा मैं जरूर बिल जरूर मक्का जाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं, नहीं रेड से नहीं लिखूंगा, समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ कंफ्यूज हो गया, ये मैंने बताया नहीं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी जो शुरू से एक दो चैप्टर जो पढ़ा कर रहा ना उसको मैं सामने रख करके पढ़ा। अब ये नून सकीला हमने पढ़ा था कि नहीं, हाँ नून खफीफा नून सकीला पढ़ा था ना, तो ये नून सकीला नहीं नून खफीफा है, सॉरी नून सकीला है, ये नून खफीफा नहीं है। तो यहाँ पे अगर नून सकीला होता तो खफीफा होता तो वहां पे सद हो जाता, ठीक है। हाँ तर्जुमा कर इसका, यहाँ शद लग जाएगा, ये लन यज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी, नहीं जाएगा, माशाअल्लाह। चले अब लेते हैं अमरतुहु, इसका तर्जुमा करें अमरतु, हाँ हाँ अमरतु, अमर का मतलब होता है हुक्म करना, बात करना, बातचीत करने के माने में भी आता है, लेकिन नॉर्मली उसको अमर का माना होता है हुक्म करने के माने में आता है। तो अमर तू क्या हो जाएगा, मैंने किसको दिया, हाँ उसे हुक्म दिया, क्या हो गया जी। अब ये अन क्या है, ये अन, ये खफीफ करने वाला है, खफीफ करने वाला ना, देखना खफीफ नहीं करने वाला। तो अन ये के माने में आता है ना, के माने में, ये यहाँ से याद अशहदु अन्ना, अशहदु अन, जो अशहदु अन्ना पढ़ता ना, तो अमरतुहु मैंने उसे हुक्म किया कि आई यज़हबा, कि वो जाए, इलल मस्जिदी, कि वो जाए मस्जिद की तरफ, ठीक है। मैं लिखता हूं, क्या माना हुआ जी, वो निकला मिनल फसली, यहां गौर करें, ताकि वो चला जाए, हाँ लामे कई है, ये लामे कई है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कई इस्तेमाल कर सकता हूँ, कई इस्तेमाल कर सकता हूँ ना जी, दोनों सेम ही है ना, लामे कई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कई भी इस्तेमाल कर, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। तो खराजा मिनल फसली, वो क्लास से बाहर निकला, लिया जबा, ताकि वो चला जाए, या कई अजहबा, दोनों कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब लेते हैं हम, इजन तब तो, इजन यज़हबा तब तो वो चला जाएगा, ठीक है। क्या माना, लाम है ये, लम, लाम और मीम है, लाम मीम जबर लम है, लम, ये जबा है ना, वो दोनों हरगिज नहीं गया, लम माजी के साथ खास करता ना, वो दोनों गया ही नहीं, वो दोनों गया ही नहीं, हाँ वो दोनों गया ही नहीं, वो डीट था वो दोनों का दोनों। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लम्मा यज़हबू, वो लोग अभी तक नहीं गए, हाँ ये कब बोलेंगे बोलिए, तो जब घर में मेहमान रहता है, जब घर में मेहमान रहता है ना, तो फिर बोले वो लोग अभी तक नहीं गए,
हाँ, तो वहाँ वहाँ पे ये सब लफ्ज़ वो सब लफ्ज़ इस्तेमाल अरबी में इस्तेमाल करता है कि उन लोगों को भी समझ में ना आए। वो बोलेंगे चलो कुरान पढ़ रहे हैं वो लोग। वो एक जुमला भी निकला ना, बोले कि हस्बैंड वाइफ दोनों को अरबी में सीखना चाहिए और जब झगड़ा करें तो मालूम चले कुरान का मुकालमा चल रहा है। ठीक है ना? तो चले हाँ। यज़हब इ यज़हब अगर वो जाएगा तो मैं जाऊँगा। अच्छा यहाँ पे आप एक बार देख लियो उर्दू के जुमले में जब हम ये लिख रहा ना, जुमला शर्तिया में लिखना इ यज़हब, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो के लिए चूँकि अरबी में लफ्ज़ फ़ा इस्तेमाल होता है, तो फ़ा इस्तेमाल हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि उर्दू मुहावरे में तो हम तो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जब हम इस्तेमाल करेंगे इ यज़हब, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो की ज़रूरत नहीं है, अगर तू जाएगा मैं जाऊँगा। ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना उर्दू मुहावरा। तो ज़रूरी है, फ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लगाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर कोई लगाएगा तो इ यज़हब फ़अज़हब, तो मैं जाऊँगा। ये है। ठीक है, लास्ट ले लेते हैं हम। जी। लियज़हब, उसे चले जाना चाहिए, उसे चले जाना चाहिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही सेशन था हम लोग के फजल से। तो कोई सवाल वगैरह नहीं है अभी ध्यान में? इंशाल्लाह फिर खत्म करते हैं पक्का 1 घंटा में। ठीक है, तो हमारा सेशन यहाँ तक खत्म हो गया। हमारा फेल खफीफ और अखफ भी खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारा फेल आमर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्ना भी लगा दीजिए, लाम भी लगा दीजिए, नून सकीला भी लगा दीजिए, नून खफीफा भी लगा दीजिए, जितना जिद है ना, जितना जोर है ना, सब लगा दीजिए, बहुत जरूरी है। तो मेहरबानी करके कोई बहाना ना मारे। हाँ बोले, क्वेश्चन क्या था? जी, असल में इन्ना जो है ना वो अन्ना के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इन्ना को ना अन्ना भी पढ़ा जाता है, वो अन्ना ही माना है, असल में वो अन्ना ही आता है। तो बाज दफा इन्नी यकीनन में लफ्ज इस्तेमाल होता है, बाज दफा उसको अन्नी कह देते हैं। असल में मसला ये ना कि इसको पीछे से मिलाकर पढ़ने में माना करते हैं। ये जो अन्ना अगर नजर आएगा ना आपको, ये पीछे से जब मिलाकर पढ़ते हैं ना, तो अक्सर वहां नजर आएगा आपको। स्टार्टिंग में इन्ना ही, नॉर्मली इन्ना ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर का। स्टार्टिंग में जो इन्ना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज दफा जैसे मैंने उस दिन पढ़ा था कि फेल मुजारे को जोर पैदा करने के लिए बाज दफा अरब कद का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन अगरचे ये उसूल नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कर देता है। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है वो इस्तेमाल करते तो हमें भी इस्तेमाल करना। तो कद अगरचे वहां पे इस्तेमाल जरूरी नहीं है। फेल मुदारे को जोर पैदा करने के लिए मैंने बताया था उस दिन कि नून सकीला और नून खफीफा का इस्तेमाल होता है और शुरू में लाम लग जाता है, जो मैंने अभी लाजबन्ना का इस्तेमाल किया। ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें बाज दफा जोर पैदा करने के लिए अरब इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा उसी तरीके से नॉर्मली लफ्ज इन्ना ही है और शुरू में इन्ना के लिए इन्ना लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, और अन्ना अक्सरियत जो होता है ना वो बीच में इस्तेमाल होता है। तो अन्ना का माना भी जोर ही होता है। ठीक है, अन्ना का इस्तेमाल होता है ना, अरब बहुत अन्ना का रसूल, यकीनन आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है ना? और बहुत से कलिमात में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये रह गया। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं इंशाल्लाह? चलिए इख्तिताम करते हैं। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।